Hello dear student, I am Varun Nisha from LPM Public School. In this video, we are discussing about the formation of compound. So, formation of compound is done by the loose and gain electron by metals and non-metals respectively. So lose and gain electron by metals and non-metals respectively. For example, according to the octet rule of Jean-Lewis and Cossel, they say that in the periodic table, except hydrogen and helium, the all metal and non-metals are want to contain 8 electron into their outermost cell, that is outermost cell or valence cell. Outermost cell, that is valence cell. For example, sodium atomic number, it will be changed, that is aluminum, that is atomic number 30. When it loses or in outermost electron, that is K, L, M, 2, 8 and 3, it is a metal. And for example of chlorine, that is non-metal. For example, that is chlorine. Chlorine atomic number is 17 and it's contained 287. So it is a outermost electron above, and it is also outermost electron above. Outermost electron above. Here is, if it is called valence cell or outermost cell. Electron, and here is non-metal, that is the 7 is valence cell electron, valence cell or outermost cell. According to octet rule, it stands that in case of metal and non-metal, in their outermost cell contain 8 electron. It may be metal or it may be non-metal. In case of, look at the aluminum, in case of metals, the aluminum atomic number is 30, and here is electronic configuration of aluminum, that is 2, 8, 1, 8, 3. When aluminum loses their 3 electrons, it found the aluminum 10 and 2, 8, and their outermost electron, that is 8. When it releases their 3 electrons like that, and chlorine, in case of chlorine, that is chlorine 2, 8, 7. So in case of, this is the outermost electron of chlorine. Remove that, and I write the outermost cell of the electron, that is एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो
इलेक्ट्रॉन देता है तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ये एक को नहीं बल्कि 3 क्लोरीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 है क्लोरीन का, सारे क्लोरीन के केस में हमेशा 7 होंगे। और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर ये डोनेट करता है, फिर नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इस तीसरे क्लोरीन को जाएगा, तो देन इट विल फॉर्म द AlCl3, AlCl3, AlCl3. So it carry the charge. For example, aluminium में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उसके पास कितना प्लस चार्ज आएगा? 3 प्लस चार्ज आएगा। और क्लोरीन ने कितना गेन किया प्लस चार्ज को? तो 3 टाइम, दैट इज 3 एल्यूमिनियम ने गेन किया, अपनी तरफ गेन किया। सो इस वजह से पूरा का पूरा जो ये एक कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो ये बनेगा कि AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। In this compound, aluminium donated their 3 outermost electron and carry and obtain the complete octet, and this octet is matched with neon. That is, neon is noble gases. Neon is noble gases. So in this way, here is an valence cell, outermost cell, that is 8 electron. किसी भी मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड के केस में उसके आउटर मोस्ट में अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको उसके आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो वो अगर गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन ले या फिर लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल की हेल्प से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 माइनस चार्ज and 3 plus charge appear in case of aluminium chloride. In case of aluminium chloride, so what will form within the aluminium? That is, अगर इसमें एल्यूमिनियम के बीच में अगर आप देखेंगे तो तीनों एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा और इसमें क्या करेगा? प्लस 3 चार्ज एक्वायर है, 3 प्लस एंड 3 माइनस। तो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द force that hold the 2 opposite atoms, 2 opposite species, that is cation and anion. Cation and anion. So in this way we can understand about the charges, and the 2 different charges are attract to each other and they form between the bond between A plus aluminium plus and chlorine minus, and this called is electrostatic force of attraction, and bond will be called electrovalent bond, and bond will be called electrovalent bond, electrovalent bond, electrovalent bond. And in this way, and in another way हम और क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट so here is the valence cell, and that is now another compound is formed. After formation of compound,
that is calcium. Calcium oxide that we have already discussed. Magnesium oxide that we have already discussed. If you not discussed, that is discussed that magnesium के पास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है. अगर आप बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 282 होता है. तो 2 अगर रिलीज करता है मैग्नीशियम, उसके पास कितना चार्ज आएगा, मैग्नीशियम +2. अगर आप मान लीजिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. मैग्नीशियम दैट इज 282 12 होता है. KLM. M से अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, +2. और क्लोरीन की केस की बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है, 17. 2, 8 and 7. तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो कैसे होगा, यहाँ मैं प्लस को डालता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को. और यहाँ पे मैं क्लोरीन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कौन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और कौन इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का है. तो मान लीजिए मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है. जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, क्योंकि क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. कैसे एस्टेब्लिश करेगा, तो अभी इसको 2 क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ती है. एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को भी डोनेट करेगा. तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. इसके पास -2 चार्ज है और इसके पास +2 चार्ज है. तो दोनों चार्ज के बीच में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने की वजह से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब इलेक्ट्रोवैलेंट, अब ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. इस तरह से सारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और सारे के सारे बॉन्ड को जो बोलते हैं हम, वो है आयोनिक बॉन्ड. तो प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. Now, so property of ionic compound. Properties of ionic compound. Property of ionic compound. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इनका एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये कैसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट. व्हाई? बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट बिटवीन 2 एटम्स. फॉर एग्जांपल NaCl. So another property that is solubility. Solubility की अगर बात करें तो सॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं. वो होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपका एथेनॉल, पेट्रोल, बेंजीन, एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक में आपका वाटर होता है. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब ये कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जिस भी कंपाउंड में और कार्बन प्रेजेंट होगा वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में
जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चैप्टर 4 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ लेट अस सी अबाउट द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अगर आप दोनों में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आपने नमक ले लिया, नमक का क्रिस्टल ले लिया, और नमक का क्रिस्टल एक तरफ आपने थोड़ा सा बीकर में वाटर लिया था, उसमें आपने ऐड किया, थोड़ा सा इथेनॉल ऐड, थोड़ा सा एथेनॉल दूसरे टेस्ट में लिया था, उसमें ऐड किया, थोड़ा सा पेट्रोल दूसरे टेस्ट में लिया था, वो उसमें ऐड किया, और थोड़ा सा बेंजीन दूसरे टेस्ट में लिया था, उसको ऐड किया। यानी कि तीनों जो सॉल्वेंट है वो दो अलग अलग टेस्ट में जो आप लेते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाला टेस्ट ट्यूब है, अलग टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लिए हुए है, अगर आप बारी बारी से एक एक स्पैचुला ऐड करते हैं, तो आप देखोगे कि जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, वो सिर्फ इसमें डिसॉल्व होता है, कि वो ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल में क्लियरली तरीके से आप देखोगे। उसके बाद तो इनकी सॉल्युबिलिटी किसमें होती है, हमेशा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। नेक्स्ट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये क्रिस्टलाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं होते? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बात करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे? नो। अगर इनको घोल लें या मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, तो क्या ये शो करेंगे? यस। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी they conduct electricity at molten states। molten states में ये अपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को शो करते हैं। यानी कि इफ यू रिमाइंडेड, अगर आप याद रखें तो चैप्टर 2 में डिस्कस हुआ था, ऑल एसिड और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दो चार्ज स्पीसीज होंगे, एक कैटायन होगा और एनायन होगा। तो दोनों ये क्या करते हैं, एक अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ पे आपने इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है, और ये इलेक्ट्रोड प्लस है और ये इलेक्ट्रोड माइनस है। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोड की तरफ क्या आएगा और माइनस की तरफ क्या आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ किस तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, और सर्किट हो गया आपका कंप्लीट। तो जो बल्ब रहेगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि सर्किट हो गया कंप्लीट। और सर्किट किसकी वजह से कंप्लीट हुआ? सर्किट जैसे ही पानी में आपने आयनिक कंपाउंड को घोला तो वो अपने अपने आयंस में टूट जाता है। सपोज दैट आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम प्लस में क्लोराइड माइनस में कंप्लीटली टूट जाता है। जब टूटता है तो जो क्लोरीन होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपस में जब चीज अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन की वजह से सर्किट जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से आपके पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दैट द आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकल और कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टिंग स्टेज और मेल्टिंग। मोल्टेन बोलते हैं, मोल्टेन और मेल्टिंग एक ही बात है। मेल्टिंग
स्टेज। ये एक ही बात है, कहने के तरीके अलग अलग है। या तो मोल्टेन स्टेज बोल सकते हैं और या तो मेल्टिंग स्टेज में, दोनों स्टेजेस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नाउ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।